اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 8 سبجیکٹ اردو اور ٹاپک ہے جابر بن حیان. جابر بن حیان کے متعلق آج ہمیں پڑھنا ہے. جابر بن حیان کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک عطار کا بیٹا تھا اور اس عطار کا نام تھا حیان. یہ تقریباً آج سے کوئی سینکڑوں سال کئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ 1818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا. اس عطار کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا. حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا, روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا. جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا. ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا. اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا. گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی, البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا. کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا. ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا. جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا. چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی. اب جابر جوان تھا. اسے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کے دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دعوتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں, طرح طرح کی دعوتیں, الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا. تو یہ ہے جابر بن حیات. جابر بن حیات کی کچھ باتیں جو ہم نے پڑھی. جو پہلا پیراگراف ہے اس میں جو ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ کہ جابر بن حیان کئی 100 سال پہلے 1818 کے آس پاس کوفہ جو بغداد کا ایک شہر ہے, کوفہ اس کی اپنی ایک منفرد حیثیت ہے. کوفہ میں دنیا اسلام کے ایک مشہور و معروف امام پیدا ہوئے جسے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں. اسی کے شہر میں کوفے میں ایک عطار عطر بیچنے والا, جو ہم عطر ملتے ہیں خوشبو کے طور پر, عطار جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے اس کو عطار کہتے ہیں. وہ رہتا تھا کوفے میں. اس عطار کا نام, اس عطر بیچنے والے کا نام حیان تھا. عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی. جو جابر
जो ये हयान यानी जाबिर का बाप एक छोटा सा काम अतर भेजने का काम कर रहा था। मुश्किल से इसके दिन गुजर रहे थे, उसमें यानी उसकी जो कमाई होती थी बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को उसमें उस आमदनी से अपने आप को पालता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ उसका, जिसका नाम जाबर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। जब हयान को बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम उसने जाबर रखा। तो अब इसका जो फैमिली स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। तो अब ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अब अयाल बढ़ रहा है तो इनके रोजी रोटी की फिक्र लाख हुई। अब वो इसी फिक्र में परेशान होने लगा। रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा, यही परेशानी सताने लगी। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराये में मुलव्वस हो गया। अब जबकि उसने वो अतारी का काम छोड़ दिया था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि इससे रोजमर्रा की गुजर बसर मुझे पूरी नहीं हो सकती, तो वो अब कुछ गलत कामों में उलझ गया और छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जराइम यानी जुर्म की जमा यानी कई जुर्म इसने किए। जाबर भी नहायत ही कम सन था। जो इसका बेटा हयान का जाबर बेटा था वो बहुत छोटा था कि बाप का साया सर से उठ गया, यानी हयान इस दुनिया में नहीं रहा, जाबर बहुत छोटा था। अब जाबर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ इसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब जाबिर जब यतीम हो गया, अब के सर से बाप का साया उठ गया, तो अब माँ पर सारा बोझ पड़ गया इस गरीब माँ पर, जाबिर की तालीम तरबियत का। माँ ने कम से कम जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। तो कोफा जो उस वक्त शहर था बगदाद का, तो वहां से उसने अपने बेटे जाबिर को बाहर शहर से बाहर गाँव में भेज दिया अपने रिश्तेदारों के यहाँ, ताकि वहां पर इसकी तरबियत हो सके या वहां पर वो पले बढ़े। तो जाबिर को इस तरह बचपन में ही आजाद फिजा में दिन गुजारने का मौका मिला। गाँव में हम देखते हैं कि वहां पर खुली जमीनें होती हैं, खेत खलियान होते हैं, वहां पर ठंडी हवाएं होती है, साफ शफाफ हवा होती है बनस्बती शहरों से। शहरों में जो गाड़ियों का धुआं उड़ता रहता है, फैक्ट्रियों का शोर होता है, आबादी गुंजान होती है, तो उसमें कम जमीन पर ज्यादा मकान वहां पर बनाए जाते हैं, तो लोगों का वहां पर उठने बैठने में थोड़ा मुश्किलात दरपेश होती है। लेकिन खेलने कूदने में, उठने बैठने में गाँव का माहौल कदरे अच्छा होता है शहरों की या कस्बों की मानद। गाँव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई, क्योंकि गाँव में तालीम का माहौल बहुत कम होता है। आज भी हम देखते हैं कि शहरों में तालीम के जो वसाइल होते हैं वो ज्यादा होते हैं बनस्बती गाँव से। उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था, गाँव में इसे मामूली तालीम मैसर हुई। अलबत्ता तलाश जुस्तजू का मादा इसमें कूट कर भर गया। जो इसको वो तलाश थी, जिसकी जुस्तजू थी, फिक्र थी इसकी कि मैं कुछ पढ़ूं, मैं कुछ बनूं, वो मादा इसका कुछ करने का, इल्म हासिल करने का जो इसमें मादा वो कूट कर भर गया था इसमें। यानी बहुत ज्यादा इसमें वो फिक्र लायक हो गई थी कि मैं अपने इल्म को ज्यादा परवान चढ़ाऊं। कुछ साल गाँव में गुजार के बाद जाबिर वापस कोफा आया। कुछ साल जब गाँव में उसने मामूली तालीम हासिल करने के बाद वो शहर वापस आ गया, यानी कोफा वापस आ गया। इन दोनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। कोफा जो इल्मी शहर था उस वक्त एक अच्छा माहौल था, क्योंकि जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। जब वो कोफा पहुंच गया तो वहाँ एक इल्मी माहौल था, तो इससे इसका शौक और ज्यादा बढ़ गया। चनाच इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवज्जह तालीम हासिल की। तो उस तालीम को हासिल करने के लिए इसने मदरसे में यानी स्कूल में एडमिशन लिया, दाखिला लिया और मुरवज्जह तालीम हासिल की। यानी जिस इल्म का, जिस नॉलेज का, जिस इल्म का रिवाज होता है, यानी जो आज हम स्कूल में पढ़ाते हैं इसको हम मुरवज्जह तालीम कहते हैं, क्योंकि आज इसी का रिवाज है तो इसको हम मुरवज्जह तालीम कहते हैं। तो उस वक्त जो मुरवज्जह तालीम थी उसने उसको हासिल करने के लिए स्कूल में दाखिला लिया। अब जाबिर जवान था, अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, इसे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाच इस पर सोना बनाने की धुन सवार हुई। वो
परेशान था कि माँ की गुर्बत देखकर, और उसने अब एक जहन में उसने ये चीज बनाई कि मैं सोना बनाऊंगा, गोल्ड बनाऊंगा, और उसने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की खासियतें मालूम करना शुरू की। अब जो दवाइयाँ होती है उनकी खासियतें मालूम करना शुरू किया, इसके मतलब वो कैसे बनते हैं, इसकी खासियत क्या होती है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कैसे असरात होते हैं इस दवा के, तो वो इल्म हासिल करने की उसने कोशिश शुरू की। साथ ही किस्म किस्म के दांतें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। अब किस्म किस्म के दांतें जो मेटल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स, इन्हें अलग मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियों के साथ मिलकर, जड़ी बूटियाँ जो मतलब बेल बूटियाँ जो होती है जिनसे दवाइयाँ हासिल होती हैं, उन छोटे छोटे दरख्तों, छोटे छोटे पौधों के साथ मिलाकर, दांतों को मिलाकर इसने एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। भट्टी उसमें होती है जिसमें लोहे हम पिघलाते हैं, उसने उसको दांतों को जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इसको पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह के दांते, अलग अलग शक्ल के बर्तन थे। इसके घर में अब मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ किस्म के दांते और अलग अलग शक्लों के बर्तन थे, क्योंकि अलग अलग शक्लों के बर्तनों में ये अलग अलग तजुर्बात करता था। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी का मतलब है जो हम कीमियागर कहते हैं, हम कीमिया बनाने वाला। पहले इस्तेलाह सोना या चांदी बनाने वाले के लिए मखसूस थी, अब इसे दवाएं इसी किस्म की दूसरी चीजें तैयार करने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीमियागर इसको कहते हैं, जो पहले दवाएं बनाता था उसको हम कीमियागर कहते थे। पहले इसको सोना या चांदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कीमियागर को। अब जो दवाएं बनाने वाले लोग होते हैं इनको हम कहते हैं कीमियागर। तो जो जाबिर था वो मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को मिलाकर, धातु के साथ मिलाकर उसको पिघलाना शुरू करता था, और हर वक्त वो नए नए तजुर्बात करता रहा। कीमियागरी की इन तजुर्बों के दौरान इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की, क्योंकि पहले ज़माने में कीमियागरी जब सोना और चांदी जो पिघलाता था, इनको नई शेपें देता था, उसको कीमियागर कहते थे। इन तजुर्बों के दौरान इसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। जब वो मतलब कोई चीज़ पिघलाता था एक गर्ज के लिए, तो दूसरी चीज़ भी वजूद में आती थी, जिससे बहुत सी चीज़ें ईजाद की गई जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, जबकि इसने इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत से आसान चीज़ें पैदा की, जिससे लोगों की ज़िंदगी गुजारने में आसानी पैदा होती थी। तो इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, एक मशहूर खलीफा, बादशाह हारून रशीद जो बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। इसने जाबिर की शोहरत सुनकर उसको बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो इसकी बड़ी कदर हुई। जब वो बगदाद गया तो हारून रशीद ने इसकी बड़ी कदर की, खलीफे वक्त ने इसका बड़ी कदर की। खलीफा ने इसे इनाम इकराम से नवाजा। इसकी जो तजुर्बात थे, इसकी जो इंसानी ज़िंदगी को कुछ चीज़ें मुहैया करने के जो इसने काम किए थे, उसे देखकर खलीफा इसे खुश हुआ और इसे इनाम व इकराम से नवाजा। शुक्रिया। कल आगे पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में और जाबिर हयान के बारे में, इसने क्या दुनिया को क्या क्या दिए उनके बारे में चला हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।